Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood on his last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As we are doing the exercise of chapter number 4, class number 10. In the last video, I have completed question number 1, part A, and now I will complete question number 1, part B. Using loop, the following pattern is to be drawn on the screen. Here you can see that in the first line we uh, print letter A on the screen, then on the second line we print B, C, then D, E, F. If you count the total number of rows, then these will result into 1, 2, 3, 4, 5. We will use nested loop and the rows will be controlled by the outer loop. There are total 5 rows, so the outer loop will be executed from 1 to 5. So here is our program. The first line is the include statement, which contains the definition of our printf and scanf function. As usual, it will be hash include stdio.h. After that, the main function from where the execution of our program starts, white main. After that, you will declare the variables int I, comma j. I will represent the loop control variable or the counter variable of outer loop, and j will represent the counter variable or loop control variable of inner loop. Here you can see two loops. The outer one, the first one is the outer loop and the next one is the inner loop. As I have mentioned earlier that there are 5 rows, so the outer loop will be executed 5 times. Here you can see that I is assigned a value of 1, then it will go through 2, 3, 4 and 5. Then I plus plus, this will move the value from 1 to 2, then 3, then 4 and then 5. From outer loop the control will be moved to the inner loop. In inner loop, j is assigned the value of 1. This is also called initialization. Then there is condition j is less than equal I. It will execute up to the value of I. As the value of I is 1, so this will execute only one time. After checking the condition, the control will be moved to the body of the loop where printf statement is used. Here format specifier %c is used, and after this the variable alphabet is printed on the screen. What is alphabet? Here is a logical error. Instead of alphabet, I must have used the variable character. No, character equals character alphabet equal to a. Here's a logical mistake. Let me correct it. So I have corrected the logical mistake. I have declared a variable of character type data with the name of alphabet and give it an initial value of capital A, and that A is enclosed within single quotes. After that, statement terminator is placed. So in the inner loop, the inside the body of the inner loop, printf statement is used where the value of the alphabet is printed on the screen. Initially the value of the alphabet whose data type is character, so A will be printed on the screen. After that there is double plus sign. So this double plus sign is a special character in C language. It is called postfix increment operator. If it is placed before this variable, then it is called prefix increment operator. It has a special functionality. First the value of the variable will be printed on the screen, then it is incremented by 1. So we all know that the
ASCII code of capital A is 65. So after printing capital A, its ASCII code will be incremented to 1, which will be resulted into 66. So now alphabet contains next character, that is B, capital B. So after this, the control will be moved back to the condition part of the inner loop where J plus plus is executed. The value of the J will become 2. As the value of I is 1, the condition becomes false, and from here we will move out the body of the inner loop where an escape sequence is used, and this escape sequence will move the cursor to the beginning of the new line. So this escape sequence will move the print control character to the beginning of the new line. After that we will move to the outer loop, and this outer loop we must place an opening and closing braces here, opening and closing brace here. So I have put an opening brace for this outer loop here and a closing brace for this here. So after moving the cursor to the beginning of the new line, from here the control will be moved back to the condition part of increment or decrement part of the outer loop. Here the value of I will be incremented by 1. Previously its value is 1, now after the increment its value will become 2. So here the value of I will be replaced by 2. As 2 is less than or equal to 5, the condition is true. The control will be moved back to the inner loop where J is initialized again with the value of 1. Here after this initialization the condition part is checked where the condition is true, as J is 1 and I is 2. So 1 will be less than equals to true. After this the control will be moved back to the printf statement. Here the value of the character type variable alphabet will be printed on the screen, which is B, capital B. After printing capital B on the screen, its value will be incremented by 1 because of this double plus sign. Again, let me tell you that it is postfix, P-O-S-T, post, F-I-X, postfix increment operator. After B, its value will be incremented by 1 and now its value is capital C. So here B and C will be printed on the screen. From here the control will be moved back to this part, and from here the value of J will be incremented by 1. Previously its value is 1, now its value will become 2. Again the condition is checked. J will be replaced by 2, I is replaced by 2. 2 is less than or equal to 2. The condition is true. The control will be again moved to the body of the inner loop where C will be printed on the screen. After that we will move to the new line. So from here the control will be moved back to the increment part of the inner loop. The value of J will become 3. The condition will be checked and condition will become false as 3 is not less than or equal to 2. From there we will jump out from the body of the inner for loop, and again a new line will be printed on the screen. The cursor will be moved to the beginning of the new line and this process will continue. From there we will move back to the outer loop. Here we will move to the increment part. Now the value of I will become 3. Now the 3 characters D, E, F will be printed on the screen. Again the same procedure will be repeated. You can see the complete program. You can take a screenshot of this program. This is, I have explained it's some steps. You can also go through its all steps,
And finally, after printing the fifth line KLMN, when the value of the outer loop will become 5. So what will happen? The control will be moved back to the inner loop here. The condition will be checked again. The J will be initialized to 1. Condition will be checked. The control will be moved back to the body of the loop. Here alphabet plus plus. First the value of the alphabet variable will be printed on the screen. Then its value will be incremented by 1. And from there the control will be moved back to here. And the characters K, L, M, N will be printed on the screen as the value of inner loop, uh, the value of I is 5, so this will be executed 5 times, but the uh, this will be executed 5 times. Okay, so N, the next character after the N letter will also be printed on the screen. M, N, O will be printed on the screen. Okay, so this is all from this program. Let's move forward to exercise number 2, which is the statement of this question is as follows. Write a program that takes two positive integers a and b as input and displays their value of a raised to power b. Suppose a is 2 and b is 4. So 2 raised to power 4 will be equal to 16. So 16 would be displayed on the screen. First, let brief look at the program. The first statement will be include statement. The next one will be the main function. After that, you declare the variables int a, b, c, and assign an initial value to the variable c, which is 1. After that, printf, enter a and b. You will enter two integers in the scanf function, a and b. You will enter 2 in variable a and we will enter 4 in variable b. a में 2 एंटर करेंगे, b में 4 एंटर करेंगे. इसके बाद आप लूप को चलाएंगे. 4 and I equal to 1, I is less than equal to b I plus plus. छोटी सी ये 3-4 लाइन्स हैं, इसको देख लीजिए. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप लूप की बॉडी में चले जाएंगे. ये एक स्टेटमेंट है सिर्फ, c इक्वल c मल्टीप्लाई बाय ए. सी में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, पावर आ जाएगी ए रेज टू पावर बी की. उसके बाद आप जो है वो लूप सारा चलता रहेगा. ठीक है, इसमें आपके पास आ जाएगी सी में पावर. सी को प्रिंट करवा दीजिए. क्या करेगा? प्रिंट एफ रेज ऑफ ए रेज टू बी इज, यहाँ पे आप डबल कोट्स में स्टेटमेंट लिखते हैं सिंपल ए रेज टू बी इज. यहाँ पे आपने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए. यहाँ पर ए में आ जाएगा 2, बी में बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 4 है. तो 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे सी में उसका रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 16. ठीक है, इसके साथ ही आपका ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ. इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3. एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेस देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD यूजिंग यूक्लिडियन मेथड. यूक्लिडियन मेथड, इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके स्पेलिंग ठीक कर दिए हैं. ये है यूक्लिडियन मेथड. यूक्लिडियन मेथड क्या है? अभी इसको प्रोग्राम के बाद हम देखते हैं कि यूक्लिडियन मेथड क्या है. सबसे पहले प्रोग्राम देख लीजिए. हैच इंक्लूड stdio डॉट h. इसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे. इसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इंट m n r. m आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट इंटीजर है. n आपके पास दूसरा इंटीजर है. r आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, वो वेरिएबल जिसमें आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो स्टोर करेंगे. ये पूरा प्रोग्राम आपके पास है, इसको देख लीजिए. ये 8 नंबर का लॉन्ग प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है. प्रिंट एफ एंटर टू इंटीजर्स. यहाँ पे आप
m और n में 2 इंटीजर्स एंटर करेंगे। इसके बाद फॉर लूप है। फॉर लूप के आपको जो है वो मालूम है कि 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, दूसरा पार्ट कंडीशन का है, तीसरा पार्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का है। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट को हमने कंडीशन लगाई वाइल n इज ग्रेटर देन 0। सेकंड नंबर जो है उसको जब तक वो 0 नहीं हो जाता या जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक हम इस लूप को स्टार्ट रखेंगे। अब देखें इसमें हमने सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स आएंगे, सिर्फ 3। आर रिजल्ट या यहाँ पे आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD भी यहाँ पे वेरिएबल रख सकते हैं इक्वल्स m mod n। फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर आएगा वो इसमें स्टोर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल में सेकंड वैल्यू असाइन कर रहे हैं और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल में ये जो रिजल्ट आया था वो स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जो रिमाइंडर आया था हमारे पास वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। बस ये 3 स्टेटमेंट्स बार 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 एग्जीक्यूट होंगी। इसको लिख लीजिए 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको लिख कर याद कर लीजिए, यही इसकी लॉजिक है। ठीक है, एक मरतबा फिर देख लीजिए, कंडीशन लगाई हमने वाइल सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उस वेरिएबल में स्टोर किया। सेकंड वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल को इक्वल किया, जो रिमाइंडर आया था उसको सेकंड वेरिएबल के इक्वल कर दिया। डेट्स इट। एक वक्त आएगा कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा हमने इसमें प्रिंट करवाना है, वो हमने प्रिंट करवाना है r को। नेक्स्ट पेज पे देखें, इसके नेक्स्ट पेज पे है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। हमारे पास GCD जो है वो कैलकुलेट हो गया है। GCD हमारे पास वेरिएबल m में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा देंगे प्रिंट ऑफ GCD जो है वो m आ गया है। तो एक गिनती की 3-4 कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप इनको फॉलो कर लेंगे, आपके पास GCD आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर फ्रॉम 1 to 7। अब क्या करना है, पहले 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। फैक्टोरियल होता क्या है, ये पिछले साल बोर्ड में 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। पहले मैं आपको समझा दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए जी, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है। फैक्टोरियल जो है 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 will be resulted into 120, or in other way 1 into 2 into 3 into 4 into 5 will be resulted to 120. 120 is the factorial of 5. Now what will be the factorial of 4? Multiply from 1 to 4 and all the numbers between these two numbers, 1 into 2 into 3 into 4 will be resulted into 24. So the 24 is the factorial of 4. In the same way, factorial of 3 is 6, factorial of 2 is 2, and factorial of 1 is 1. So this is the factorial of a number. Now you have to calculate the factorial of 7 numbers. You have to repeat a pattern. You will use nested loop. हिंट है यहाँ पे, नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इंक्लूड स्टेटमेंट, सेकंड विल बी मेन फंक्शन, फैक्टोरियल इक्वल टू 1। here is the definition of our outer loop for int I equal to 1, I is less than equal to 7, I plus plus 7 क्यों है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 7 तक नंबर्स का फैक्टोरियल मालूम करना है, तो इसलिए यहाँ पे I की वैल्यू आएगी 7, ऑटो लूप चलेगा 7 टाइम्स। अब तमाम कैलकुलेशन हमारी इनर लूप में होगी। इनर लूप को हम चलाएंगे फॉर j इक्वल टू 1, इंट j इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी यहीं पे किया है इनिशियलाइजेशन पार्ट में, और इसको वैल्यू भी असाइन इधर ही की है, j इज लेस देन इक्वल टू i। जो वैल्यू i की होगी इनर लूप हमारा वहीं तक चलेगा। i की वैल्यू 1 है तो इनर लूप 1 मरतबा चलेगा। उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी, इनर लूप 2 मरतबा चलेगा, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर एंड में i की वैल्यू हो जाएगी 7, तो इनर लूप 7 टाइम्स चलेगा। ये 7 1 to 7 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है दोनों का।
ये कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट है। इनर लूप में देखिए फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू वाई, जे प्लस प्लस। कंडीशन चेक करने के बाद कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जे। जे की वैल्यू क्या है? जे की वैल्यू है 1। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल की वैल्यू है 1। 1 इंटू 1, इस वेरिएबल में 1 स्टोर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये जब लूप चलेगा तो इसको स्क्रीन के ऊपर आउटर हमारे पास ये इनर लूप ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट है फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इस परसेंटेज डी। इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले इन वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट परसेंटेज डी के बदले वैल्यू आएगी आई की, सेकंड परसेंटेज डी के बदले वैल्यू आएगी फैक्टोरियल की। ये वेरिएबल है तो आई की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है, तो 1,1 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, फैक्टोरियल को दोबारा 1 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस प्रिंट एफ में आपने एक बैकस्लैश एन भी यहाँ पे यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया। एक नई स्टेटमेंट प्रिंट एफ के यूज़ कर लीजिए, या यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज़ कर लीजिए, जो कि एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा कंट्रोल जाएगा आउटर लूप में। यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपने 2 का फैक्टोरियल मालूम करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आएगा इनर लूप जो है वो 2 मरतबा चलेगा। जे की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, इनर लूप 2 मरतबा चलेगा। जे की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1, इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इंटू 1, इसमें हो जाएगा स्टोर 2। तो 2 का फैक्टोरियल क्या है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे फैक्टोरियल दोबारा हो गया 1, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ये 3 मरतबा चलेगा, फिर 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से लास्ट टाइम यहाँ पे ये स्टेटमेंट 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और 7 का फैक्टोरियल जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। यू कैन put the values of these variables and you can run these statements by yourself। आप ये बुक में देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो कि 8 नंबर का आया था, इस प्रोग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पे ये बेहतरीन मौका है इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को समझाने का। ये 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया था, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय यूज़र। यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में अब आपके पास है हैश इंक्लूड stdio.h वाइट में। यहाँ आपको नज़र आ रहा है इंट एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने एक नंबर, कोई भी नंबर जो यूज़र एंटर करेगा उसका हमने फैक्टोरियल यहाँ पे डिस्प्ले करना है। प्रिंट अ मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू सी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट के बदले आप सिर्फ लिख सकते हैं प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर, बस। यहाँ पर डबल कोट्स लगाए, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेटर पुट करते हैं। स्कैन एफ, यहाँ पे यूज़र नंबर एंटर करेगा। सपोज यूज़र ने एंटर किया 5, तो ये देखें उसने 1 2 3 4 5 6। सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया, तो ये 5 का फैक्टोरियल 120 आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 24, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2, 1 का फैक्टोरियल 1। ये मैंने अभी आपको दिखाया था। ये स्टेटमेंट किस चीज़ की एग्जीक्यूशन है? ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन है, यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे 5 एंटर करता है तो लूप हमारा चलेगा 5 मरतबा। इस n के बदले आ जाएगा 5 फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, ये मैंने बता दिया इसकी। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे फैक्टोरियल के बदले इसकी वैल्यू लिखें। इसकी वैल्यू इनिशियल 1 थी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये आई की वैल्यू जो है यहाँ पे ये चेंज होती रहेगी। आई की वैल्यू 1 से, काउंटर है ना, काउंटर जब आप करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 तक जाएगी। 5 मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब छठी मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ से आपका कंट्रोल जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा। ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, और इन 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले n की वैल्यू प्रिंट होगी, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के बदले फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट होगी।
अगर यूज़र ने 500 किया तो 5 की वैल्यू जो है 120 प्रिंट हो जाएगी। एक और बात अपने ज़हन में रख लीजिए कि अगर आपको ये प्रोग्राम आता है तो आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है बस। ये इसकी एग्जीक्यूशन नहीं बतानी, ये सिर्फ उसने आपको समझाने के लिए टेबल बनाया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास प्रोग्राम था, एक मरतबा फिर आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, पूरा प्रोग्राम आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्राम नंबर 5। ये हमारे पास सेकंड लास्ट प्रोग्राम है चैप्टर नंबर 4 का, जो जिसकी स्टेटमेंट ऐसे है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स write a program that takes 10 numbers as input in an array and displays the product of first and last element on console। कंसोल कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। एक अरे डिक्लेयर करें, उस अरे में 10 नंबर्स एंटर करें और फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है उसकी प्रोडक्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। वेरी सिंपल। हैश इंक्लूड stdio.h वाइट मेन, यहाँ पे आपने अरे डिक्लेयर की। इंट अरे, ये अरे का नाम है, 10 उसका साइज है, ये आपने अरे को डिक्लेयर किया। अब आपने इसमें वैल्यूज एंटर करनी है, उसके लिए लूप चलाएंगे। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। अब तक आप इसको फेमिलियर हो जाना चाहिए इन तमाम चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद देखें स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया आपने, जो कि यूज़र से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू लेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आप पहली वैल्यू एंटर करेंगे जो कि अरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्योंकि 0 है तो यहाँ पे आप 0th एलिमेंट में जो वैल्यू एंटर करेंगे, कोई भी वैल्यू एंटर कर दें आप, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, ठीक है। 0th एलिमेंट में 2 कर दें। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद स्कैन एफ के बाद आप क्या कर रहे हैं, अब इस लूप में क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है तो इसीलिए इसको कर्ली ब्रेसेस में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको कर्ली ब्रेसेस के में एनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कैन एफ की स्टेटमेंट 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 0 से लेकर 9 तक। ये 10 टाइम्स बन गया, 10 वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे, ठीक हो गया। जो आप 10 वैल्यूज एंटर कर चुकेंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट एफ यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट करवा रहे हैं, बजाय इसके कि एक और स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं उसमें प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, कॉलन का साइन है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ परसेंट साइन, इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। डी डबल कोटेशन क्लोज, यहाँ पे AR0, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आनी चाहिए थी, नहीं आई, मैं अभी लगा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, या इसे स्टार का सिंबल कहते हैं, AR9। यहाँ पे भी लॉजिकल मिस्टेक है, यहाँ पे जो नाम यूज़ किया गया है एरे, यहाँ पे भी वो पूरा नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको फ़ायदा होगा कि कौन कौन सी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी जी। तो यहाँ पे मैंने ठीक कर दी है इसको। जो नाम एरे का मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वही नाम यहाँ पे आया, यहाँ पे भी वही नाम आना चाहिए, ARRAY। यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट, उसकी वैल्यू, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे इसका ARRAY, यहाँ पे इसका लास्ट एलिमेंट। इन दोनों में जो वैल्यूज़ होंगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और एक सिंगल वैल्यू जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएगी। प्रोग्राम के सामने अब इस चैप्टर का लास्ट प्रोग्राम देखें। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड में फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में दोनों में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक्सरसाइज क्योंकि इसकी मुश्किल थी और एक्टिविटी इसकी मुश्किल थी, जो कि आपको किसी नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। और मैंने नोट्स देखे हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा 3-4 मैंने नोट्स देखे हैं और उनमें मिस्टेक्स हैं, लॉजिकल मिस्टेक्स हैं कई, ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई लॉजिकल मिस्टेक्स वगैरह नहीं है। अगर मुझे कोई नज़र आ रही है तो उसको मैं साथ साथ ठीक कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये 100% करेक्ट प्रोग्राम आपके पास है। एक्सरसाइज नंबर 6 देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स and initializes an array of 7 elements and tells how many elements in the array are greater than 10। आपने 7 साइज की एरे डिक्लेयर करनी है और आपने बताना है कि उसमें से 10 से बड़ी वैल्यूज किन किन एलिमेंट्स में स्टोर है। सिंपल, आपके पास ये पूरा प्रोग्राम नज़र आ रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें एक मरतबा। इसकी लॉजिक मैं समझा देता हूँ। इंट काउंट इक्वल टू 0, इस वेरिएबल में आप उन एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। यहाँ पे इंट एरे साइज उसका 7 रखा आपने। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर 7 एलिमेंट्स के एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें रेंज कौन सी होगी, एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे। तो आंसर उसका पहले भी मैं बता चुका हूँ, 0 से लेकर 6 तक 7 एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर कर सकेंगे। इसका लास्ट एलिमेंट जो कि 7 है उसमें \0 या एक नल कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि यहाँ पर एरे का एंड आ गया है। एरे का नाम यहाँ पे हमने ARR रखा। अब यही ARR थ्रू आउट हमने यहाँ पे यूज़ किया, और जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी हम, क्योंकि उसको प्रिंट नहीं किया, हमने प्रिंट किया काउंट को, तो यहाँ पे हम काउंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने इंट डाटा टाइप का, इसमें इनिशियली 0 स्टोर कर दिया। ये आपने अरे डिक्लेयर की, इसका साइज 7 है, इसमें आपने 7 एलिमेंट स्टोर कर दिए। 20 एलिमेंट जो है वो 0th इंडेक्स में स्टोर होगा, ये 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और ये 6 में 7th एलिमेंट, जैसे मैंने अभी बताया वहाँ के पास नल करेक्टर होता है उसमें स्टोर। ये आपने अरे को डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। आपने लूप चलाया, लूप कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 6 तक चलेगा। यहाँ पे भी ये आपके पास लॉजिकल एरर है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी। जी यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो देखें 0 से लेकर 6 तक ये 7 टाइम लूप चलेगा। 7 वैल्यूज ही हमने स्टोर करनी थी ना, ये देखें 7 एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे लूप चलेगा 0 से लेकर 6 तक, 7 टाइम्स हो जाएगा। इफ़ एरे आई की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 10, अगर जो वैल्यू एरे के 0th एलिमेंट में स्टोर है अगर वो 10 से बड़ी है तो काउंट को प्लस प्लस कर दें। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना काउंट की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू 20 है, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू हो जाएगी एक के इजाफे के साथ 1, कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। सेकंड वैल्यू आपने स्टोर की 10, 10 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर 8, 5, 90, 90 पे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, 7 पे कुछ भी नहीं होगा, 50 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब आप इसको रन करेंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो आएगी 3, ठीक है। एक एक एलिमेंट को वो चेक करेगा कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है, और फिर यहाँ पे लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। printf नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 10, कॉलन का सिंबल, %d का सिंबल, डबल कोटेशन क्लोज, इस %d के बदले इस काउंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने अभी कैलकुलेट की 3। इसी के साथ ही आपका ये प्रोग्राम, बल्कि प्रोग्राम्स जो कि चैप्टर नंबर 4 के तो ख़त्म हो गए। अब इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम्स रह गए हैं और चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्राम्स रह गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम्स मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, और इसके बाद एग्जांपल्स रह जाएंगी। तो उम्मीद है कि बार बार आप देख कर, सुन कर, इसको लिखेंगे भी अगर 1 से 2 मरतबा, तो आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि 8 नंबर का प्रोग्राम अगर ये बोर्ड में आता है तो आप इसको कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत नाजिल करे। अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का, छोटों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।